Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to a new lecture in the series for Foundation and Management Accounting subject. And in this lecture, we are going to start our new chapter that is Accounting for Labors. Accounting for Labor, it's basically a chapter जो आप लोगों ने MA1 में भी study किया है, MA2 में भी study किया है, and in F2 or FMA, this entire chapter is actually a revision for what you have studied in MA1 and MA2. There is nothing new that I can say is something that has been introduced at this level. So this entire chapter is actually a quick revision. So also I will not be giving much of time to this chapter. I will be preparing just one or two lectures about this chapter. So, considering the fact that you guys will be having the entire knowledge about this chapter. So let's just quickly start this chapter. Accounting for labor. Previously, we dealt with accounting for labor, that accounting for material. Actually, that was a kind of, but you can say, a big chapter. But comparing to that, accounting for labor is a very quick one. Right. First of all, you very well know what is labor. Labor means any person that is involved in production directly or indirectly. Right. कोई भी ऐसा बंदा जो आपके लिए आपका एक प्रोडक्ट बना रहा है, एक यूनिट पर वर्क कर रहा है, आइदर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, दैट इज डायरेक्ट लेबर, और आइदर वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, दैट इज इनडायरेक्ट लेबर, इज कंसिडर्ड टू बी योर लेबर. राइट. इस चैप्टर में हम बेसिकली द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई जस्ट टोल्ड यू, दैट लेबर जो है आपका, लेबर वो आपका आइदर डायरेक्ट होता है या आपका इनडायरेक्ट लेबर होता है. राइट. अब लेबर को हम पे कैसे करते हैं, तो ब्रॉडली वी क्लासिफाई लेबर पेमेंट्स इनटू टू पोर्शंस. लेबर पेमेंट्स, number one, it is time related, and number two, it is output related. Okay. So time related payment means that whatever the time your labor is spending on the production of your product, आप उसको multiply कर देते हो with a specific rate. Right. So for example, your time rate, जो भी आपका टाइम रेट इन डॉलर्स आपका जो सेट हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम स्पेंड पर. राइट. आपने जो भी टाइम स्पेंड किया है, आइदर वो आवर्स में है, आइदर वो वीक्स में है, आइदर वो मंथ्स में है, और आइदर वो ईयर्स में है, उसको मल्टीप्लाई कर दो एक स्पेसिफिक टाइम रेट के साथ. फॉर इंस्टेंस, लेट्स से इफ आई एम पेइंग माय लेबर $2 पर आवर and my labor is spending 10 hours in the production, so this means 2 into 10 makes $20 my labor payment. If I am giving $10 per week and my labor is spending 10 weeks on the production, so this means 10 multiplied by 10, that gives us $100 total payment. राइट. सो जो भी आपका टाइम रेट है, वो किसी में भी हो सकता है, वो आवर्स में हो सकता है, वो वीक्स में हो सकता है, या वो मंथ्स में हो सकता है. उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो. लेट्स से अगर एक मंथ की सैलरी है $10,000, अ पर्सन स्पेंड्स 12 months, तो 10,000 इंटू 12 आप कर लो तो 120,000 आपका बन जाता है. Right? So time related payment is very easy. You just need to multiply the time rate in dollars multiplied by time spent. अगर हम आउटपुट रिलेटेड पेमेंट्स की बात करें, तो याद रखिएगा, आउटपुट रिलेटेड पेमेंट्स जो हैं उनको हम पीस वर्क भी कहा कहते हैं. एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीस वर्क. थ्री टाइप्स ऑफ पीस वर्क स्कीम्स हैं. द वेरी फर्स्ट स्कीम जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दैट इज स्ट्रेट लाइन पीस वर्क. व्हाट हैपेंस इन स्ट्रेट लाइन कि एक फिक्स्ड पर यूनिट रेट होता है, फिक्स्ड पर यूनिट रेट इन डॉलर्स. आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. Right. For instance, if you are for instance, you have agreed that you will be paying your labor $2 per unit, and your labor makes 100 units, so 2 into 100. If you have agreed that the rate is $2 and your labor makes 50 units, then 2 into 50. तो आप स्ट्रेट लाइन में एक फिक्स्ड रेट होता है, वो रेट पर यूनिट चेंज नहीं करता, एंड यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. Number two, we have differential units, differential piecework. In differential piecework scheme, there are brackets, right? Different brackets are set. Brackets for unit production are set.
नाउ व्हाट डज डिफरेंट ब्रैकेट्स इन यूनिट प्रोडक्शन मीन? दिस मीन्स कि फॉर इंस्टेंस आप ये कहते हो अपने लेबर को कि यार अगर आपने 1 से लेकर 99 यूनिट्स तक बनाया, तो जितने भी यूनिट्स बनाओगे उस पर मैं आपको पर यूनिट $2 पर यूनिट जो है वो पे करूंगा। लेकिन अगर आपने 100 से लेकर 199 यूनिट्स के ब्रैकेट में आप चले गए, तो 100 से 199 यूनिट्स तक जितने भी आप यूनिट्स बनाओगे वो मैं आपको $3 पर यूनिट्स जो है वो पे करूंगा। तो फॉर इंस्टेंस लेट्स से अगर आपका जो लेबर है वो 150 यूनिट्स बनाता है, तो दिस मींस कि 99 यूनिट्स को आप $2 पे मल्टीप्लाई करोगे एंड बाकी जो 51 यूनिट्स होंगे उनको आप $3 पे मल्टीप्लाई, राइट? सो दिस इज डिफरेंशियल पीस वर्क। फिर इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती थी दैट वाज गारंटेड मिनिमम, गारंटेड मिनिमम पीस वर्क सिस्टम। इसमें क्या होता था? इसमें अ मिनिमम वेज, सॉरी, a minimum wage was paid if the production was below minimum level. फॉर इंस्टेंस आप ये कहते थे कि यार अगर मेरा लेबर जो है, अगर वो बिलो, लेट्स से अगर वो 0 से 49 यूनिट्स तक बना रहा है, दैट इज बिलो एवरेज हम अज्यूम करते हैं, तो मैं आपको जो है वो $50 पे कर, राइट? अगर आप 50 यूनिट्स से ऑन 50 एंड ऑनवर्ड्स अगर आप बना रहे हो, राइट, तो मैं आपको $5 पर यूनिट पे करूंगा। इसका मतलब है कि अगर एक बंदा 0 यूनिट्स भी बनाता है या 40 यूनिट्स बना रहा है, 45 यूनिट्स बना रहा है, उसको $50 मिलेगा। लेकिन अगर वो 50 से एक्सीड कर रहा है तो फिर उसको $5 पर यूनिट के हिसाब से पे किया जाएगा, राइट? तो गारंटेड मिनिमम में क्या होता है कि इफ देयर इज नो एक्टिविटी स्टिल यू आर बीइंग पेड एट अ मिनिमम लेवल। ओके, सो गारंटेड मिनिमम में होता है कि आपको एक मिनिमम लेवल जो है वो आपकी जो वेज है उसका पे किया जाता है। तो दीज वर लाइक थ्री टाइप्स ऑफ योर पीस वर्क सिस्टम्स, दैट इज स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशियल एंड गारंटेड। सो लेबर को दो तरीके से पे किया जाता है, टाइम रिलेटेड एंड आउटपुट रिलेटेड। अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं जो कि आपकी लेबर कॉस्ट में इन्वॉल्व होती हैं। नंबर वन, आपकी बेसिक पे का क्या मतलब होता है? बेसिक पे का मतलब होता है जो आपके कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स या कॉन्ट्रैक्टेड टाइम हम कह लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट इन डॉलर्स, राइट? जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टेड टाइम है, चाहे वो आवर्स हैं, चाहे वो वीक है, या चाहे वो आपका मंथ है, उसको अगर आप टाइम रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज गोइंग टू बी योर बेसिक पे। बेसिक पे की बात जो है अगर हम बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी योर ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है? टाइम अहेड और टाइम स्पेंड मोर देन बेसिक टाइम और बेसिक आवर्स। आप कह लो अगर आवर्स में आप जा रहे हो तो टाइम स्पेंड मोर देन बेसिक टाइम इज ओवर टाइम, right? What does this mean? This mean, for instance, if you have contracted a labor for 40 hours per week and that labor spent 45 hours per week, so वो जो उसने 5 hours extra spend किए हैं, that is technically your overtime. ओके, ओवर टाइम का आसान मतलब ये होता है जब आप अपने वक्त से ज्यादा वक्त लगा रहे हो, दैट इज योर ओवर टाइम। ठीक है, अब हम जब ओवर टाइम पेमेंट की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जो ओवर टाइम पेमेंट है इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पोर्शंस। आपकी जो ओवर टाइम पेमेंट है इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पोर्शंस। नंबर वन आपका बेसिक पोर्शन एंड नंबर टू आपका प्रीमियम पोर्शन। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ पर जो है एग्जांपल से समझाता हूँ एंड यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। लेट्स से एक मैन है और उसका जो बेसिक आवर्स है, मैं BH से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका बेसिक आवर्स जो है वो 40 आवर्स पर वीक है, राइट? एक बंदा है और उसके जो बेसिक आवर्स है वो 40 आवर्स पर वीक है। उसका जो बेसिक रेट है दैट इज $5 पर आवर, राइट? तो उसकी बेसिक पे कितनी बन जाएगी? उसकी बेसिक पे बन जाएगी, आप 40 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, तो दैट मीन्स $200
इसको हम ये लिख लेते हैं 200 आवर्स पर वीक आपका बेसिक पे बन जाएगा, राइट। लेकिन इन अ पर्टिकुलर वीक मैन वर्क्स 45 आवर्स। अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने 45 आवर्स जो है वो वर्क किया। दिस मीन्स कि जो 5 आवर हैं वो क्या है, वो आपके ओवर टाइम है। अब ओवर टाइम भी हमने पे करना होता है, तो याद रखिएगा ओवर टाइम के दो पोर्शन होते हैं। एक तो 5 × $5 हो जाएगा, जो कि उसका कौन सा पोर्शन होगा, जो कि उसका बेसिक पोर्शन होगा, बीपी के मैं नाम से उसको रिप्रेजेंट कर। और एक आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको ये बोलेगा कि बिकॉज यू आर वर्किंग ओवर टाइम, सो आई एम गोइंग टू गिव यू लेट्स से $10 पर ओवर टाइम आवर। अब इसमें ओवर टाइम आवर्स कितने हैं, 5। तो $10 पर ओवर टाइम आवर का मतलब है कि 5 उसमें बेसिक है, एंड 5 जो है उसमें वो आपको प्रीमियम पे कर रहा है। तो ये आपका प्रीमियम पोर्शन हो जाएगा। तो प्रीमियम पोर्शन इज समथिंग कि जो आपको बेसिक पे से ज्यादा मिले। तो ओवर टाइम पेमेंट या ओवर टाइम रेट आपको वो कितना दे रहा है, वो आपको दे रहा है $10। तो $10 में से 5 तो बेसिक है, तो जो बाकी का 5 बच जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर प्रीमियम पोर्शन। ओके। आपके क्वेश्चंस में इसको लिखा जाएगा टाइम एंड हाफ करके, राइट। टाइम एंड 20% ऑफ बेसिक, राइट। टाइम एंड 100% ऑफ बेसिक। इस तरीके से ये लिख लेंगे। टाइम एंड हाफ का मतलब है कि आपका जो बेसिक है 5 प्लस बेसिक का हाफ 2.5, तो 2.5 इज योर प्रीमियम। टाइम एंड 20% ऑफ बेसिक का मतलब है कि आपका टाइम दैट इज 5 प्लस 20% ऑफ बेसिक का मतलब है कि आप 5 को 20% ले लो, तो दैट इज गोइंग टू बी 1। तो 1 आपका प्रीमियम हो जाएगा, एंड 5 आपका बेसिक, एंड इसका 100% का मतलब है कि इसका डबल कर लो, तो दैट इज गोइंग टू बी 5, जो मैंने इस केस में किया, राइट। तो इस तरीके से आपके ओवर टाइम पेमेंट्स कैलकुलेट। सो आई एम जस्ट गोना रिपीट इट अगेन। आपकी जो ओवर टाइम पेमेंट है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक बेसिक पोर्शन है, एक प्रीमियम पोर्शन है। आपका जो भी ओवर टाइम रेट होगा उसको एक तो बेसिक पोर्शन उसमें मिल रहा होगा, और बेसिक से ऊपर जितनी भी अमाउंट आपको मिल रही है दैट इज गोइंग टू बी योर प्रीमियम पोर्शन। ओके। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी होती है दैट इज आइडल टाइम। बल्कि आइडल टाइम को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, और व्हाई और व्हाट आर द रीजंस कि हम ओवर टाइम अप्लाई करते हैं, कि ओवर टाइम असल में लगता क्यों है। सो लेट्स टॉक अबाउट रीजंस फॉर ओवर टाइम। रीजंस फॉर ओवर टाइम। ओके। सो रीजंस फॉर ओवर टाइम में याद रखिएगा देयर आर टू रीजंस कि ओवर टाइम क्यों लगता है। एक होते हैं आपके जनरल रीजंस, और एक होते हैं आपके स्पेसिफिक रीजंस। ठीक है। एक आपके जनरल रीजंस होते हैं एंड एक आपके होते हैं स्पेसिफिक रीजंस। अगर मैं जनरल रीजंस की बात करूं तो ये अनकंट्रोलेबल रीजंस होते हैं फॉर अ लेबर, राइट। जो भी आपका लेबर है उसके लिए ये अनकंट्रोलेबल रीजन है, ये उसके हाथ में नहीं होते, ही और शी कैन नॉट कंट्रोल। बट स्पेसिफिक रीजंस आर कंट्रोलेबल रीजंस। ओके। एक जो लेबर होता है दे कैन कंट्रोल द स्पेसिफिक रीजंस। अनकंट्रोलेबल जो रीजंस हैं या जनरल रीजंस जो हैं, इसमें फॉर एग्जांपल अगर लोड शेडिंग हो रही है, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, अगर मटेरियल शॉर्टेज है आपके पास, ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव मटेरियल टू to get your production started, so how can you work in your basic hours? So obviously but you need to wait until the material will arrive, and for that reason अगर आपको कुछ extra time लगाना पड़ रहा है to complete a specific daily target, तो that is going to be due to material shortage. अगर labor shortage है, if you do not have appropriate number of labor, so obviously अगर 100 लोग चाहिए, you just have 50, so the 50 people will need to work a lot more in order to complete the daily टारगेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं या रोड ब्लॉक है जिसकी वजह से लेबर नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से लेट्स से आपका मटेरियल नहीं पहुंच सकता, तो ये तमाम चीजें जो हैं आपकी रीजंस हैं जिनको जनरल क्लासिफाई किया जाता है। इसके अलावा अगर मशीन ब्रेक डाउन हो रहा है आपका,
अगर मशीन जो है वो खराब हो गई है एंड उसको ठीक करने के लिए यू नीड टाइम, सो ऑब्वियसली दैट इज आल्सो गोइंग टू बी योर जनरल रीजन। सो ये तमाम रीजंस ऐसे रीजंस हैं जो एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो नहीं कंट्रोल कर सकता। स्पेसिफिक रीजंस में याद रखिएगा, आपकी जो कस्टमर डिमांड है, अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर वांट्स कि भाई उसको एक प्रोडक्ट जो है वो 5 डेज की बजाय 6 डेज में मिलना चाहिए, तो उन सॉरी 5 डेज की बजाय 4 डेज में मिलना चाहिए, तो वो एक दिन कम करके आपने जब उसको डिलीवरी करनी होगी तो आप बाकी 4 दिन में ज्यादा काम करोगे। अब वो ज्यादा काम आप कस्टमर की डिमांड पर कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी योर स्पेसिफिक रीजन। ओके। एंड इसके अलावा जो है, अगर किसी बंदे की एक्सपर्टीज आपको चाहिए, एक्सपर्टीज नीडेड, आपके पास एक ही बंदा है दैट नोज हाउ टू ऑपरेट अ मशीन, एंड उस बंदे को अगर आप एक्सटेंडेड आवर्स यूज कर रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ हिज बिकॉज ऑफ देयर एक्सपर्टीज, राइट? सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी क्लासिफाइड एज स्पेसिफिक रीजंस। सो यू नीड टू रिमेंबर कि ओवर टाइम दो रीजंस की वजह से लगता है, जनरल रीजंस एंड स्पेसिफिक reasons. Okay, so general reasons will be the reasons that are uncontrollable for a specific labor, and specific reasons will be controllable for a labor. Now let's understand the differentiation between direct labor payments and indirect labor payments. Okay, so for that purpose, I will be drawing another table, and let's see that how we are going to classify that. So let me just quickly make a table, and then we will basically be continuing. Okay, so let's do it like this: overtime payment for direct labor. Okay. And if it is due to general reasons, and if it is due to, and if it is due to specific reasons. Okay. So let me just quickly, okay. ओके, सो अगर आपका ओवर टाइम पेमेंट जो है वो डायरेक्ट लेबर की है, यानी डायरेक्ट लेबर जो है वो जनरल रीजंस की वजह से ओवर टाइम लगा रहा है, तो यू नो दैट ओवर टाइम में बेसिक पोर्शन भी होता है एंड प्रीमियम पोर्शन भी होता है, एंड सेम गोज बेसिक, और लेट मी जस्ट राइट so that nobody get confused. That will be basic, and that will be premium, and that will again be basic, and that will be premium. Okay, so if I tell you guys like this कि अगर एक आपका जो डायरेक्ट लेबर है, अगर वो जनरल रीजंस की वजह से आपका ओवर टाइम लगा रहा है, तो जनरल रीजन की वजह से ओवर टाइम जितने भी आवर्स लगेंगे, उन आवर्स का जो बेसिक पोर्शन होगा, दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्ट। ओके, यानी उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर करेंगे, और जो प्रीमियम होगा दैट इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट। ओके, अगर आप एक डायरेक्ट लेबर को ओवर टाइम पे कर रहे हो, एंड दैट ओवर टाइम इज ड्यू टू जनरल रीजन, सो जो ओवर टाइम का टाइम होगा उसका जो बेसिक पोर्शन आप कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सॉरी, एंड जो प्रीमियम पोर्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट लेबर। एंड अगर स्पेसिफिक रीजंस की वजह से है, तो दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्ट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर एक डायरेक्ट लेबर है एंड दैट डायरेक्ट लेबर इज वर्किंग जनरल रीजंस, ओवर टाइम ड्यू टू जनरल रीजंस, सो बेसिक इज गोइंग टू बी डायरेक्ट एंड प्रीमियम विल बी इनडायरेक्ट। स्पेसिफिक रीजंस की वजह से काम कर रहा है, तो देन बोथ विल बी डायरेक्ट। नाउ लेट मी क्विकली do this for indirect labor as well. So that will be indirect labor. Okay. हम्म, अगर जनरल रीजंस की वजह से कर रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी इनडायरेक्ट एंड प्रीमियम विल बी इनडायरेक्ट अगेन, एंड स्पेसिफिक रीजंस की वजह से कर रहा है, तो डायरेक्ट एंड
डायरेक्ट। ओके, सो रिमेंबर, अगर स्पेसिफिक रीजंस की वजह से आपका ओवर टाइम लग रहा है, सो वो ओवर टाइम आइदर आपका डायरेक्ट लेबर लगा रहा है या इनडायरेक्ट लेबर लगा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट कॉस्ट, बोथ बेसिक एंड प्रीमियम। लेकिन अगर ओवर टाइम जो है आपका लग रहा है ड्यू टू जनरल रीजंस, तो जनरल रीजंस की वजह से जो डायरेक्ट लेबर का बेसिक पोर्शन होगा वो तो डायरेक्ट है, बिकॉज ही इज डायरेक्ट लेबर, राइट। उसका प्रीमियम इनडायरेक्ट हो जाएगा। एंड इनडायरेक्ट लेबर का जनरल रीजंस की वजह से कोई भी कॉस्ट लग रही है, दैट इज क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट लेबर। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है हम एक और कॉस्ट है जिसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, नंबर 4, दैट इज आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम कोई भी ऐसा टाइम नॉर्मल आवर्स में जिसमें प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, any time within the production hours in which production is not being carried out is known as idle time. Any time within normal time period in which production is not being carried out, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आइडल। राइट। अब आइडल टाइम देखो जनरल रीजंस की वजह से लग सकता है, हो सकता है आप टी ब्रेक पर के हुए हो सकता है लोड शेडिंग हो गई है, मटेरियल शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज है। तो आइडल टाइम इज द सेम थिंग जो आप जनरल रीजंस की वजह से ओवर टाइम लगा रहे हो। एंड याद रखिएगा, एक लाइन में यहाँ लिख रहा हूं कि आइडल टाइम इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आइडल टाइम हमेशा क्या क्लासिफाई होता है? हमेशा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्लासिफाई होता है। आई होप सो यू guys will be clear at that part. Okay, so far we have discussed different type of payments for the labor, that include basic pay, overtime payments and idle time payments. Idle time याद रखिएगा, आपको बेसिक रेट पर ही पे किया जाता है, वट एवर योर बेसिक रेट इज उस पर ही आइडल टाइम पे होगा, क्योंकि आइडल टाइम बेसिक टाइम के दरमियान में ही आ रहा होता है। राइट। सो एक और पॉइंट चलिए यहाँ पर याद रखते कि आइडल टाइम इज पेड एट बेसिक रेट। ओके, सो ये दो बातें आपने याद रखनी है। आई एम ऑल्सो हाईलाइटिंग इट कि आइडल टाइम जो है वो इनडायरेक्ट लेबर या आइडल टाइम की जो पेमेंट है दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एंड सेकेंडली, आइडल टाइम इज ऑलवेज पेड एट बेसिक। Right. So this was a little bit about introduction of labor. अब जिसमें हमने इसकी बेसिक पे, ओवर टाइम पेमेंट और आइडल टाइम पेमेंट की बात की। Now let's talk about bonuses. देखो, जब भी योर लेबर विल बी वर्किंग, सो यू विल बी गिविंग incentives and you will be giving some kind of extra things to your labor. Okay. नाउ देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप किसी भी लेबर को इंसेंटिव पे करोगे, किसी भी लेबर को कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करोगे फॉर देयर वर्क डन, सो दिस थिंग इज बेसिकली गोइंग टू मोटिवेट देम अ लॉट, एंड दिस थिंग इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प देम टू डू देयर वर्क अ लॉट मोर, with a lot more motivation. देखो, अगर आपको इन 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 डेली लाइफ देखो, अगर आपको इफ समवन सेज कि इफ यू डू दिस वर्क आई एम गोइंग टू गिव यू 1000 रुपी, और इफ यू डू दिस वर्क आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू स्पॉन्सर यू, और आई एम गोइंग टू ट्रीट यू विद अ फ्री मील, और आई एम गोइंग टू ट्रीट यू विद अ फ्री मूवी टिकट। राइट। सो अगर आप इट्स नॉट नेसेसरी कि हर वक्त कैश की ही बात हो, बट आप अगर किसी को भी किसी काम करने के बदले में कुछ चीज ऑफर कर दो, कुछ गिफ्ट ऑफर कर दो, so they are going to do that work with more motivation, with more enthusiasm, right, and with more dedication and attention. राइट। सो याद रखिएगा, जब भी हम अब नॉर्मल प्रोडक्शन आवर्स में अपने लेबर को बोनसेस देते हैं, बोनस मींस उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं जो कि उनकी सैलरी से हटकर होता है। सो दे ऑलवेज वर्क विद मोटिवेशन अनटिल एंड अनलेस वो बोनसेस जस्टिफाई होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक बहुत ही मुश्किल काम का छोटा सा बोनस दे रहे हो, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइबल, राइट, तो फिर वो मोटिवेट नहीं। ओके। तो अब देखो, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट को ये बोलो कि कंप्लीट योर ACCA इन 3 years एंड आई एम गोइंग टू ट्रीट यू विद अ फ्री मील और विद अ फ्री लंच,
So this is not something motivating for them. But yes, if you tell a student to complete your ACC in 3 years and I'm going to treat you, मतलब especially अगर parents बोले कि we are going to treat you with a foreign trip, with a UK trip or Maldives trip, so definitely that student is going to be motivated to complete their ACC. राइट सो आपकी जो बोनसेस है वो हमेशा जस्टिफाई होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो जस्टिफाई, राइट सो जब भी आप अपने लेबर को बोनस पे करोगे तो वो बोनस बेसिकली जो है वो जस्टिफाई होना चाहिए। एंड बोनस आप क्यों पे करते हो? ताकि आपका जो लेबर है वो क्या हो जाए, वो मोटिवेट हो जाए एंड आपका लेबर जो है वो दिल लगाकर काम करे एंड जल्दी काम करे। अब आपके जो चैप्टर है लेबर्स का उसमें दो तरीके के बोनस फॉर्मूलाज जो है वो लिखे हुए हैं। अब if your labor chapter is being tested in your FMA, so there are a lot of chances कि आपका बोनस का सेक्शन जो है वो टेस्ट होगा। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे एंड प्लस ये मोस्ट लाइकली आपके जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा होता है एग्जाम में उसमें भी आपको ये गिवन होते हैं। पहला जो आपका बोनस है दैट जो फॉर्मूला है दैट इज कि इफ एम्प्लॉय रिसीव्स 50% ऑफ द टाइम सेव। नंबर वन, इफ एम्प्लॉय receives receives 50% of time saved। मतलब आप अपने एम्प्लॉय को ये कहते हो कि यार अगर आप अगर आप एक काम जल्दी कर लेते हो, अगर आप टाइम सेव कर लेते हो, तो जितना भी टाइम आपने सेव किया होगा उसका हाफ जो टाइम होगा उस पर मैं आपको बोनस पे करूंगा। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि 50% है, मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका बेसिक रेट होगा, राइट। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय बेसिक रेट। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि समटाइम्स योर एम्प्लॉयर सेज दैट इफ यू इफ यू सेव द टाइम सो आई एम गोइंग टू गिव 60% ऑफ द टाइम सेव। तो अगर 60% है तो फिर आपको टाइम सेव को उस रेलिवेंट परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा यूं हो जाएगा, टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय जो भी रेलिवेंट परसेंटेज है, राइट, एंड देन मल्टीप्लाई बाय बेसिक रेट, राइट। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, टाइम से मल्टीप्लाई बाय 50%, 60%, 70%, जो भी आपकी जो रेलिवेंट परसेंटेज है, या आप इसको टू पे डिवाइड करते हैं अगर वो 50% पे है, राइट। तो अगर आपके एम्प्लॉय को 50% ऑफ टाइम सेव्ड या टाइम सेव का कोई भी पोर्शन बोनस में मिल रहा है, तो जितना पोर्शन मिल रहा है उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर दें एंड मल्टीप्लाई बाय बेसिक रेट कर दें, राइट। जो उसके बाद सेकेंड मेथड है दैट इज बेसिकली रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू टाइम अलाउड। अगर आप अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रहे हो एज पर रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू टाइम अलाउड, तो उसमें क्या होगा, आप सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट कर दो। रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, राइट। तो आपने ये रेशियो कैलकुलेट कर दी। अब जब आप रेशियो कैलकुलेट कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है टाइम सेव के साथ एंड देन मल्टीप्लाई करना है टाइम रेट के साथ। तो इस तरीके से आप जो हो अपना जो सेकंड फॉर्मूला है वो कैलकुलेट कर सकते हो, रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू टाइम अलाउड। सो दीज आर बेसिकली योर टू फॉर्मूलाज जो कि आप बोनसेस के तौर पर अपने लेबर को जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से मेथड्स होते हैं। हो सकता है कि आप जो है अपने लेबर को ग्रुप बोनसेस दे रहे हो कि भाई अगर लेट्स से आपकी लेबर टीम वर्क कर रहा है, टीम में काम कर रहा है, तो उस टीम में काम करने वाले तमाम लोगों को आप बोनस दे रहे हो सकता है आप अपने लोग अपने लेबर्स को ये बोलो कि यार मेरा जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका 1% या 2% मैं तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ये भी हो सकता है कि आप अपने लेबर्स को ये बोलो कि यार आपकी जो सैलरी है उसका 10% मैं आपको एज अ बोनस दूंगा। तो बोनस देने के बहुत से जो है ना मेथड्स होते हैं, राइट। देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ मेथड्स जिसमें आप बोनस पे कर सकते हैं, बट नॉर्मली ये जो दो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं दीज आर समहाउ highly tested in your exams, right? So this is not something
दैट जो डिफिकल्ट है, अगर इसके अलावा भी कोई चीज आती है तो यू विल क्लियरली बी गिवन इंस्ट्रक्शंस, राइट? कि फॉर एग्जांपल द एम्प्लॉयर सजेस्ट टू पे द लेबर 10% ऑफ देयर सैलरी, सो इट विल क्लियरली स्टेट कि यार बोनस जो है वो किस तरीके से पे किया जा रहा है, तो आपने उस तरीके से उसको कैलकुलेट करना होगा, राइट? अंटिल इसके अलावा बोनसेस में जो है हमारे पास और कुछ खास चीज नहीं है, राइट? इसके अलावा अगर हम अब थोड़ा सा मजीद बात करें तो हम जो है हम बात कर सकते हैं अकाउंटिंग फॉर लेबर्स की। अकाउंटिंग फॉर लेबर्स में हम जो है वो इसकी डबल एंट्री की बात करते हैं। ये मैंने आपको मटेरियल्स में भी बता दिया था कि एज लेबर हमारे पास दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट एंड एक इनडायरेक्ट। एंड मैंने आपको मटेरियल में भी बताया था कि मटेरियल हमारे पास दो तरीके का होता है। जब डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर की बात आती है तो आप वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करते हो एंड क्रेडिट क्या करते हो। अब वहां पर मटेरियल अकाउंट क्रेडिट होता था, यहाँ पर आप वेज या सैलरी कंट्रोल अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दो, बिकॉज यू हैव टू पे सैलरी और वेजेस टू योर लेबर, राइट? एंड व्हाई वी आर डेबिटिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, बिकॉज ये डायरेक्ट लेबर आपके प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। एंड अगर इनडायरेक्ट लेबर है तो आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट करोगे, व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट डायरेक्टली क्लासिफाई द इनडायरेक्ट लेबर। एंड अगेन आप क्रेडिट क्या कर देते हो, वेज या सैलरी कंट्रोल अकाउंट जो है वो आप अपना क्रेडिट कर देते हो, राइट? सो दीज आर जस्ट स्मॉल टू एंट्रीज जो आपको याद रखनी है और जो आपको आती होंगी ऑलरेडी, जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने कवर अप की होंगी। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली द इंटायर एक्सप्लेनेशन जो टेक्निकली आपका MA1 का भी चैप्टर था। सो दिस वाज ऑल इन रिगार्डिंग टू द लेबर। अब जिसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ मजीद जो है वो चीजों की बात करेंगे, एंड होपफुली द नेक्स्ट लेक्चर विल be the last lecture for this chapter, and then we will be proceeding ahead as well. So until then, understand this lecture, prepare well, and if you guys have any question, you can always send me the feedbacks and get in touch with me. And in as far as the question practice is related for all these lectures, so that will definitely be provided to all my registered students. Thank you so much, guys. Until next time, take care and have a good day. Bye.